knocks the ball over the deep fine leg, but there was no connection between bat and ball. Ball just smashed his thigh pad, and there was no chance of run as there was fielder in 30th circle. Rawson who went quick towards ball and just finished any chance of singles or doubles. With this, Noor is really quick and he's doing very much nice bowling, very much nice effort from Noor in this low total match. He's just bringing those excitement. He's just hitting the nerves of batsman of Ankit Alebishasari. Now again, right arm round the wicket, Noor. Shot pitch delivery, huge appeal. Huge appeal from umpire. Both there is a little bit of excitement in the players of all the 11 of LNCC Ramoli. Both umpires are taking their time and they will just give the decision. I will request all the players that don't pressurize our umpire, just respect the decision. And umpire has denied the appeal. Now again, Noor is very much unhappy from the decision of umpire. He just appealed very much with full of excitement. Now again, Noor will continue his run-up, right arm around the wicket to Rawson. Now again, Rawson will face Noor. Noor right arm down the wicket to Rawson. There was a huge appeal on last delivery, but umpire denied. Now again, Noor is getting ready with his run-up. Long on is outside 30-yard circle for Rawson. And one fielder is at deep mid-wicket. Now again, Noor. That was in slot, and there is a fielder at deep point, short point, and very bad throw from Shoro lefty. If ball was in a stump, then Manohar would have departed towards his dugout. As Manohar is very much not a very good runner, he just runs very slow. If it was a good throw, Shoro lefty would have collected ball and thrown it in the gloves of Chuna, then Manohar would have departed. But right now Manohar is completely safe in his crease, and one chance has been given to Manohar by the LNCC 11 Ramoli. Let's see Manohar utilizes that chance or not. Now again, Noor will continue to Manohar. Manohar will face Noor. Noor right arm over the wicket to Manohar. Nice delivery, pitched down offside, off stump and just bounced little quick. And Manohar just seen that ball and left it. The ball went in the gloves of wicketkeeper Chuna. With this, there was no contact between bat and ball and no chance of run from not even try by Manohar. Now again, Noor will continue with his run-up, right arm over the wicket to Manohar. Let's see what's happened. That was short pitch, every ball went in air, but ball felt little shorter as Furkan was at third man, but there was no chance for Furkan to collect that ball. With this, there is the end of third over, and the score became 19 runs with the loss of 0 wickets. Both the opener batsmen are safe and in their dugout, as both batsmen almost got one chance, as there was one catch went off Suraj in deep fine leg where there was no fielder, and now again one run out chance was missed by Ramoli and Manohar got one chance. नए गेंदबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा। अमरेंद्र बाहुबली आए हैं यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए। बल्लेबाजी में कुछ खास कर नहीं पाए थे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है अभी 19 रन, मात्र 1 रन आए हैं नूर की इस ओवर में। जितनी तारीफ करूं नूर की गेंदबाजी की उतनी कम। 2 ओवर के स्पेल में मात्र 7 रन फेंके हैं नूर। शानदार गेंदबाजी की है। एक जीवनदान मिल चुका था मनोहर को, रन आउट होते हुए बार बचे थे। इस बार फिर से चलेंगे अमरेंद्र बाहुबली, सामना करेंगे सूरज। मात्र 1 रन बना 2 रन बना के खेल रहे हैं सूरज। 6 गेंदों का सामना कर चुके हैं अभी तक। थोड़े से दबाव में 5 है ठीक है अमरेंद्र, ठीक है। अरे एक एम्पायर है यार, एम्पायर को भी कॉल कर लीजिएगा। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अमरेंद्र बाहुबली सूरज के लिए।
इस बार अच्छी गेंद पढ़ने के बाद काफी तेजी के साथ आई और टकराई यहाँ पे थाई पैड के साथ, और सूरज भौचक्के थे, उम्मीद नहीं कर रहे थे इस तरह की गति का, लेकिन शानदार गेंदबाजी। जितनी तारीफ करूं अमरेंद्र की उतनी कम। लंबे कद के गेंदबाज दूर भागकर सरसों खेत से आते हैं और शानदार रफ्तार के साथ गेंद फेंकते हैं। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अमरेंद्र। एक और अच्छी गेंद करने के बाद सनसनाती हुई निकल गई विकेट कीपर के दस्ताने पर। पुल करना चाहते थे गेंद को सूरज, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। हमारे अंपायर ने दोनों हाथों को हवा में लगाते हुए वाइड का इशारा दिया। एक अतिरिक्त रन का इजाफा होता हुआ बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन बिना किसी नुकसान के। चौथा ओवर पावर प्ले का आखिरी ओवर प्रगति पर। इस बार फिर से चलेंगे अमरेंद्र दाहिने हाथ से, और इस बार यहाँ पे गैप में खेला है गेंद को। यहाँ पे डीप में विकेट पे खिलाड़ी तैनात, जब तक भाग कर आकर गेंद को फील कर दे। दोनों बल्लेबाज ने छोर बदला, काफी तेज गेंद फेंक रहे हैं। हमारे स्कोरर ने अभी बताया है कि इस गेंद की रफ्तार लगभग 143.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकली है गेंद, लेकिन जैसे जैसे गेंद को कंट्रोल में आके खेला है यहाँ पे सूरज ने और सेफ जोन में आ गए। इस बार ये मुकाबला दिलचस्प होगा। तेज गेंदबाज है अमरेंद्र, काफी तेज फेंकते हैं। देखते मनोहर किस तरह से खेलते हैं अमरेंद्र को। इस बार यहाँ कुछ भी है गेंद, फुरकान ने यहाँ पे गेंद को लपक लिया है और यहाँ पे जाना पड़ेगा मनोहर को। जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था, मनोहर अगर गेंद तेज आती है तो मनोहर के पास कोई मौका नहीं रहता है। जब तक मनोहर पोजीशन में आते हैं उस गेंद को पुल खेलने के लिए, गेंद तब तक पड़ने के बाद उनके कानों के पास आई और कान में उनके कहा क्रिस के गाना शुरू गए और फिर बल्ले को टकराती हुई चली गई पीछे। अच्छा कैच पकड़ा वहां पे फुरकान ने। जितनी तारीफ करो उतनी कम। बतौर इस ग्राउंड पे बतौर थर्डमैन प्लेयर फील्डिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है अमूमन तौर पे, लेकिन अच्छी तरह से वहां पे कंट्रोल में थे फुरकान और कैच को लपक लिया। इसी के साथ पहले विकेट का पतन होता हुआ मनोहर डगआउट में जाते हुए नए बल्लेबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा। दिलीप आए हैं यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए। विकेट कीपर बल्लेबाज हैं इस टीम के और इस बार सामना करेंगे अमरेंद्र बाहुबली का। बाहुबली ने आते ही अपने बाहुबल का प्रयोग करते हुए मनोहर को धराशायी कर दिया। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। एक और अच्छी गेंद यहाँ पे करने के बाद बल्ले का बारी किनारा चूमती हुई स्लिप में अगर एक खिलाड़ी तैनात होता तो शायद बात बनती। इधर बॉल रुके करेगा नहीं, क्या चाहेगा। इस बार एक विकेट अच्छे से पतन हो चुका है। अगर अभी एक दो और तेजी से विकेट लेने में सफल होती है एलएनसीसी रमौली की ये टीम तो निश्चित तौर पर दबाव में रहेगी। अंकित 11 सुसारी इस बार चलेंगे फिर से दाहिने हाथ से। एक और अच्छी गेंद, लेकिन इस बार अच्छे तरीके से गेंद को वहीं पे दबा दिया है। शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं अमरेंद्र बाहुबली। जितनी तारीफ करूं बाहुबली की उतनी कम। शानदार लंबे कद के गेंदबाज कॉटली एम्ब्रोस की झलक दिखती हुई इनकी गेंदबाजी में। दूर सरसों के खेत से भागकर आते हैं और शानदार तरीके से शानदार रिलीज, लंबे जंप के साथ रिलीज करते हैं। बैकफुट जो लैंड करता है काफी कम समय के लिए लैंड करता है, अच्छी गति मिलती है इनको। और गेंद यहाँ पे पुल करना चाहते थे, यहाँ पे कोई मौका नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कोई तरीके के एकदम लालोट होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे अंकित 11 सुसारी के सभी बल्लेबाज। कोई क्लू नहीं दिखा, लपेटना चाहते थे, गेंद निकल गई। इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति। मात्र 2 रन आए हैं अमरेंद्र बाहुबली की इस ओवर में और स्कोर है 4 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। क्या ये लो स्कोरिंग मुकाबला, रोमांचक मुकाबला धीरे धीरे बनेगा, देखने वाली बात होगी। फील्ड खुल चुकी है यहाँ पे। फुरकान आए हैं बाएं हाथ के गेंदबाज, मीडियम पेसर, शानदार गेंदबाज हैं। देखने वाली बात फुरकान किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। गहमा-गहमी शुरू हो चुकी है, गहमा-गहमी शुरू हो चुकी है अंकित 11 सुसारी के इस खेमे में। चलेंगे बाएं हाथ से ओवर द विकेट। जोरदार अपील थी, क्या बल्ले का किनारा लगा था, लेकिन यहाँ पे कलेक्ट नहीं कर पाए थे चुनना। थोड़ी जल्दबाजी में अपील करने के चक्कर में गेंद को कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। थोड़ी सी
जल्दबाजी नहीं दिखानी है, थोड़ा सा धैर्य से संयम से काम करना होगा। चलेंगे इस बार फिर से बाएं हाथ से ओवर द विकेट। आगे बढ़कर सवाल खेलना चाहते थे लेकिन शॉट मिड विकेट पे अशोक तैनात गेंद को फील्ड किया और किसी भी तरह की रन लेने की संभावना को वहीं पे खारिज कर दिया। थोड़ी सी आक्रामक फील्ड सेट किया गया है यहाँ पे। डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी तैनात, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ। इस बार चलेंगे फिर से, इस बार बॉल कर दिया फुरकान ने सूरत को, दूसरे विकेट का पतन होता हुआ और ये मैच क्या रोमांच की ओर बढ़ता जा रहा है। क्या ये मैच में भी बाकी है और सूरत की खराब बैटिंग, 12 गेंद भोग लगा चुके हैं यहाँ पे, मात्र 3 रन बना के आउट हुए हैं। और इस बार फुरकान ने टाटा बाय बाय सी यू कह के सूरत को वापस डगआउट में भेज दिया। नए बल्लेबाज आए शिवम, क्या ये मैच रोमांचक होता जा रहा है। 5वां ओवर लेके फुरकान आए हैं और लफ्फा भाग रहे थे, 6 नंबरा चला रहे थे यहाँ पे सूरज, और गेंद और बल्ले का कोई मिलन नहीं। गेंद उनके पैरों के बगल से निकल गई, रिंगटों में घुस गई, डंडे बिखेर दिए यहाँ पे फुरकान ने। आग उगलती हुई गेंदबाजी की शुरुआत हो चुकी है दमोली की तरफ से। कप्तान धीरज झा काफी खुश अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन से, मनोबल बढ़ाते हुए, हौसला बढ़ाते हुए अपने खिलाड़ियों का। इस बार फिर से जैसा कि बता दूं, शिवम के लिए पॉइंट वाले खिलाड़ी को दायरे में लाया गया है और डीप एक्स्ट्रा कोर में खिलाड़ी को भेजा गया लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। एक खिलाड़ी नूर खुद तैनात डीप इस मिड विकेट में, डीप स्क्वायर लेग में सोनू लेफ्टी तैनात। इसी के साथ चलेंगे फुरकान फिर से काफी छोटे रन के साथ आते हैं लेकिन शानदार गति के साथ गेंदबाजी करते हैं, गति में कोई कोताही नहीं बरतते हैं फुरकान। इस बार फिर से चलेंगे बाएं हाथ से ओवर द विकेट फुरकान, सामना करेंगे शिवम। यहाँ पे गली में अशोक तैनात, एक कीपर और थर्ड मैन के साथ गेंदबाजी अटैक की शुरुआत करेंगे। शॉट मिड विकेट पे कप्तान तैनात, धीरज झा का तबादला किया गया है, कुछ शॉट कवर पे भेजा जा रहा है। फिर से चलेंगे बाएं हाथ से ओवर द विकेट फुरकान, सामना करेंगे शिवम। अच्छी गेंद हल्के हाथों से बैकफुट पे जाके गेंद को धकेल दिया यहाँ पे मिड विकेट की तरफ। शॉट मिड विकेट पे जब तक भागकर खुद फुरकान गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला। स्ट्राइक रहेगी दिलीप के पास। वापस शुरू करेंगे फुरकान, सामना करेंगे दिलीप। इस बार जैसा कि बता दूं, बल्लेबाजी यूनिट में गहराई है कि दल में सुसारी की, लेकिन अगर ताश की पत्तों की तरह ढहती गई ऐसी बल्लेबाजी क्रम तो मुश्किल होगा अंत के ओवरों में रन बनाना। इस बार चलेंगे फुरकान फिर से, एक और अच्छी गेंद, हार्ड लेंथ पे गेंद को हिट कर रहे हैं यहाँ पे फुरकान। पड़ने के बाद गेंद अतिरिक्त उछाल लेकर उछल रहे। इसी के साथ इस ओवर की भी समाप्ति, मात्र 1 रन दिया इस ओवर में। शानदार विकेट लिया सूरज की, जोरदार गेंदबाजी, यहाँ पे जोरदार ताली होनी चाहिए फुरकान के लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 22 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 21 के स्कोर पे दोनों विकेट गिरे हैं। पत्थर सी छा गई है यहाँ पे। अभी फिर से आए हैं अमरेंद्र बाहुबली, काफी शानदार गेंदबाज है, लंबे कद के गेंदबाज। गेंद करने के बाद दिखती नहीं है यहाँ पे बल्लेबाजों को। मनोहर के साथ वही हुआ था, उनके कान में क्रिश का गाना सुना के निकल गई थी गेंद। इस बार फिर से अमरेंद्र बाहुबली तैयार होते अपने बाहुबल का उपयोग करेंगे। हट्टे कट्टे लंबे कद के गेंदबाज, सामना करेंगे इस बार शिवम। डीप कवर में खिलाड़ी को तैनात किया गया, लॉन्ग ऑफ, डीप विकेट, डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी तैनात। चलेंगे अमरेंद्र बाहुबली शिवम के लिए। इस बार इनसाइड एज लेग करके विकेट में जा सकती थी, बाल बचे यहाँ पे, पैर निकलने का मौका नहीं दे रहे हैं यहाँ पे अमरेंद्र। जब तक गेंदबाज बल्लेबाज पैर निकाल के गेंद तक पहुंचे तब तक गेंद खुद उनके बल्ले के पास आके हाय हेलो करके चली जाती है। समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे बल्लेबाजों को। अच्छी खासी गति के साथ 157-158 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद निकल रही है। फिर से चलेंगे अमरेंद्र इस बार, लेकिन रनआउट का यहाँ पे मौका, अगर सही गलत होता तो फिर से रनआउट हो सकते थे। इस बार यहाँ पे थोड़ी देर के लिए फील्ड में गहमा गहमी, और नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो खिलाड़ी तैनात हैं बैट्समैन है, उनसे अनुरोध कि अंपायर के डिसीजन पे किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
नो बॉल है या नहीं है वो देखने के लिए वहां पे हमारे अंपायर श्यामल बिट्टू है, काफी शानदार अंपायर है, आईसीसी एलिट पैनल के मैचों में अंपायरिंग कर चुके हैं, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी से अंपायरिंग करके लौटे हैं। उनके अंपायरिंग पे किसी भी प्रकार की प्रश्न चिन्ह खड़ा करना गौ हत्या समान पाप। शानदार अंपायर है हमारे दोनों अंपायर, 350 से अधिक मैचों में अंपायरिंग करने का अनुभव है हमारे अंपायर के पास। ठंड के इस कड़कड़ाती ठंड में शानदार दर्शकों से खचाखच भरा हुआ यह हाबीवाल हाई स्कूल का ऐतिहासिक मैदान, उनकी सुरक्षा में 50 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात ताकि किसी भी अनहोनी से जल्द निपटा जा सके। और इस बार पीछे चलेंगे अमरेंद्र बाहुबली, क्या ही कहने बाहुबली के दाहिने हाथ से ओवर विकेट शिवम के लिए। और इस बार जोरदार अपील, हमारे अंपायर की उस अपील का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हुआ। ठीक है, अच्छा बॉल है। और यहाँ पे करेज तोड़ गेंदबाजी कर रहे हैं अमरेंद्र, सीधा करेजा पे वार कर रहे हैं। यहाँ पे दिलों की धड़कन यहाँ पे बढ़ चुकी है अंकित अलेमन सुसारी के बल्लेबाजों के लिए। किस तरह से स्कॉटिंग की गई है आज के गेंदबाजों की, कप्तान धीरज झा काबिले तारीफ प्लेयर लेके आए हैं आज यहाँ पे। आग बोलते हुए गेंदबाजी करे अमरेंद्र, करेजा तोड़ दिया था पिछली गेंद पे शिवम का। और इस बार फिर से गेंद दिख नहीं रही है, क्या शानदार गेंदबाजी, रोमांच ला दिया है। जैसा कि मैं बता दूं इस तरह के मैचेस में छक्के चौकों से दर्शकों का मनोरंजन होता है, लेकिन पहली बार अभी तक के टूर्नामेंट में अमरेंद्र जो कि मेरे तीसरे फेवरेट गेंदबाज बन चुके हैं अपनी गेंदबाजी से, इस बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए। कोई बात नहीं। इस बार काफी ज्यादा ऊंची गेंद उछली, पढ़ने के बाद कंधे का इस्तेमाल किया था, कंधे का जोर लगा था, गेंद पढ़ने के बाद अतिरिक्त उछाल लेकर हमारे अंपायर ने दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए वाइड का इशारा दिया। अपनी गेंदबाजी से इस मैच में क्षमा बांध दिया है, सभी दर्शकों को बैठे रहने पे मजबूर कर दिया है, क्योंकि ज्यादा बड़ा लक्ष्य था नहीं। मैच शुरुआत में एक तरफा हो गया था, लेकिन अपनी गेंदबाजी से यहाँ पे अमरेंद्र ने अपनी गेंदबाजी से यहाँ पे मैच में रोमांच ला दिया है अमरेंद्र ने। फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से, इस बार फिर से गेंद थोड़ी देर के लिए खड़ी थी हवा में, बाल बाल बचे। इस बार फिर से शिवम गेंद समझ नहीं पा रहे हैं, सूझबूझ नहीं पा रहे हैं। जब तक पोजीशन में आते हैं गेंद को खेलने की, तब तक गेंद उनके बल्ले से आके टकरा जा रही है। इस तरह की गति, शानदार गति के साथ फेंक रहे हैं यहाँ पे अमरेंद्र बाहुबली। नहीं लगेगा। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से, ओवर द विकेट सामना करेंगे शिवम। इस बार यहाँ पे थोड़ी सी मिसफील्ड, डायरेक्ट हिट लगी है, जोरदार अपील, लेकिन हमारे अंपायर पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता हुआ। दोनों बल्लेबाज सही सलामत अपने क्रीज में। यहाँ पे वाइड का इशारा है और 22 का 1 रन मिलेगा। इसी के साथ स्कोर बढ़कर हो चुका है 25 रन, 2 विकेट के नुकसान पर छठा ओवर प्रगति पर। अमरेंद्र बाहुबली अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं, लेकिन सूझबूझ से इनका इस्तेमाल करना होगा कप्तान को, क्योंकि आने वाले बल्लेबाजों के लिए अमरेंद्र बाहुबली के कोटे का ओवर बचा के रखना होगा। नूर 2 ओवर फेंक चुके हैं, क्योंकि एक गेंदबाज एकमात्र सिर्फ एक ही गेंदबाज अधिकतम 4 ओवर फेंक सकता है, बाकी सभी गेंदबाज मात्र 3 ओवर फेंकेंगे। तो कौन से गेंदबाज 4 ओवर डालेंगे वो देखना पड़ेगा, देखने वाली बात होगी कि अमरेंद्र 4 ओवर फेंकते हैं या नहीं। फिर से अमरेंद्र चलेंगे दाहिने हाथ से, ओवर द विकेट दिलीप के लिए। इस बार फिर से गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में चली गई थी, यहाँ पे कोई मौका नहीं था अशोक जी के पास। अशोक जी थोड़ा सा वाइड खड़े थे, थोड़ा और फाइन होते तो सीधे हाथों में जाती गेंद। थोड़ी सी खराब फील्डिंग, थोड़ी सी इस प्रकार की अगर गेंदबाजी होती है तो अटैकिंग फील्ड लगाना जरूरी। खराब कप्तानी यहाँ पे मैं मानूंगा, क्योंकि इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति के बाद बस स्कोर है 25 रन, मात्र 3 रन आए इस ओवर से। दो ओवर फेंकने के बाद अमरेंद्र मात्र 5 रन दिए हैं और 1 विकेट ले चुके हैं अमरेंद्र। जैसा कि मैं बता दूं, हमारे स्कोरर ने एक खूबसूरत आंकड़ा पेश किया है कि अमरेंद्र के गेंदबाजी के टाइम में मात्र 1 रन बल्ले से आए हैं, बाकी वाइड और 22 के रूप में जो रन आए हैं 5-6 रन,
मतलब बल्लेबाज अभी तक रन ले नहीं पाए हैं अमरिंदर के खिलाफ। मात्र एक रन, एक सिंगल आया है अमरिंदर के खिलाफ, जो कि गेंद बल्ले से लगकर आई। बाकी वाइड और बाइस के रूप में आए रन, जो कि 5 रन आए थे एक्स्ट्रा, तो 6 रन आए इसके ओवर में। 2 ओवर में अमरिंदर 1 विकेट ले चुके हैं। फील्ड की तरफ देखें तो डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी तैनात, पॉइंट दायरे में, लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी तैनात। यहाँ पे शॉर्ट कवर पे आके तैनात हो गए खुद अमरिंदर। इसको ऊपर रख लीजिए, तो के लिए आइएगा। स्कूल के फेर से ढले जाके बोलते हैं इस बार फिर से चलेंगे फुरकान दाहिने हाथ से, ओवर द विकेट बाएं हाथ से। इस बार गेंद खड़ी हो गई है यहाँ पे, और एक विकेट का पतन होता है यहाँ पे। शानदार गेंदबाजी यहाँ पे शुरू हो चुकी है रमौली के धुरंधरों के द्वारा, और यहाँ पे मातम सा छा गया है कि दरअसल सुसारी के डगआउट में। उन्हें लगा था कि बल्लेबाजी से वो गेंदबाजी से मैच अपने नाम कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे काफी गेंदबाजों को लाया गया था रमौली के द्वारा। किरिस का सुनेंगे दिल ना दिया, दिल ना दिया। जैसा कि बता दूं, शिवम 7 गेंद खेलकर मात्र 1 रन बनाए हैं, और अपने बैट्समैन चल जाओ गोपाल जी, चल जाओ। जैसा कि अभी हमारे फिजियो एक आंकड़ा लेके आए हैं कि अंकित 11 सुसारी के सभी बल्लेबाजों का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है इस गेंदबाजी को देखने के बाद। इस बार जैसे तैसे गेंद को खेला, यहाँ पे भागकर अपना जान छुड़ाना चाहते थे, इन्होंने साइकिल इन पे भागना चाहते थे गोपाल, लेकिन यहाँ पे भाग कर आए अमरिंदर और बोले अभी आपको रुकना होगा, अभी आपको झेलना होगा, 3rd डिग्री टॉर्चर से आपको भी गुजरना होगा। जिस प्रकार की 3rd डिग्री टॉर्चर की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पे रमौली के गेंदबाजों के द्वारा। इस गेंदबाजी के बदौलत, बल्लेबाजी से तो अधिकतर मैच में रोमांच आता है, लेकिन आज गेंदबाजी की बदौलत, इस तरह की शानदार गेंदबाजी की बदौलत मैच में रोमांच आ चुका है। बाहुबली की जितनी तारीफ उतनी कम। इस बार चलेंगे फिर से अमरिंदर, माफी चाहूंगा फुरकान। इस बार गेंद खड़ी हो चुकी है, सोनू कच्चा के हाथ में एक और विकेट, और यहाँ पे यहाँ पे 21 रन पे पहला विकेट गिरा, दूसरा 21 पे, तीसरा 25 पे, चौथा 25 पे। तो अब मैं जिस तरह का ये आंकड़ा बढ़ रहा है, मैं उम्मीद करूंगा 28 पे फिर 2 और विकेट गिरेंगे, क्योंकि जिस तरह का एक क्रम चल रहा है, मैच रीजनिंग का सॉल्व यहाँ पे, मैच रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे सुसारी के बल्लेबाज। इस बार फिर से फुरकान, जितनी तारीफ करूं फुरकान की उतनी कम। 3 विकेट ले चुके हैं फुरकान अभी तक, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। मात्र 1 रन खर्च किए हैं अभी तक फुरकान, बाएं हाथ से ओवर द विकेट। इस बार फिर से बढ़िया गेंद, पैरों पे गेंद, हल्के हाथों से गेंद को वहीं पे खेल दिया मणिकांत ने। और क्षेत्ररक्षण टीम से अनुरोध कि जब गेंद हाथ से रिलीज होती है तब कृपया किसी भी प्रकार की विकेटों के पीछे से आवाज नहीं करेंगे, हल्ला नहीं करेंगे,
खेल भावना को बनाए रखें। शाबाश शाबाश गया वहां शॉट गेंद, यहाँ पे थोड़ी सी बाल बाल बचे, यहाँ पे माफी चाहूंगा, जड़ में थी गेंद, गेंद को पेश करना चाहते थे कवर क्षेत्र में। पूरा गला जल रहा, पूरा गला जल। मात्र 5 गेंद अभी ओवर में हुआ है, 1 गेंद और फेंकनी बाकी है, 1 गेंद और फेंकी जानी बाकी है। हमारे स्कोरर लेखा जोखा लेके यहाँ पे आए हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पे दिलीप की आपसे अनुरोध, धैर्य बनाए रखें, यहाँ पे हम लोग हैं, इंसाफ करने के लिए हम लोग भी हैं। आप अपना खेल पे ध्यान दें, पूरी तरह से ईमानदारी बढ़ती जा रही है। हमारे स्कोरर के क्या ही करें, लॉर्ड्स से इनको मंगाया गया है, लॉर्ड्स के ग्राउंड पर स्कोरिंग करते थे, वहां से इन्हें बुलाया गया है। यहाँ पे स्कोरर का हौसला अफजाई करते हुए अंपायर श्यामल बिट्टू एक एक गेंदों का लेखा जोखा लेके खुद बैठते हैं, तैयार रहते हैं। बोले गलत गलत नहीं बोलिए ना, सही तो बोल रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है बोले तो पहले ठीक है बिट्टू जी। इस बार फिर से फुरकान चलेंगे, आखिरी गेंद लेकर अपने ओवर की बाएं हाथ से ओवर विकेट सामना करेंगे मणिकांत। क्या आवाज आई है, नहीं ड्राइव करना चाहते थे गेंद को, लॉफ्ट टेक कवर ड्राइव खेलने का कोशिश किया था यहाँ पे मणिकांत ने, गेंद और बल्ले का कोई मिला नहीं। और यहाँ पे जोरदार तारीफ फुरकान के लिए, मेडन ओवर 2 विकेट के साथ खत्म किया इस ओवर को। जितनी तारीफ करूं फुरकान की गेंदबाजी की उतनी का। हमारे आज के मैच के स्पॉन्सर्स भवानी मां भगवती ऑटोमोबाइल्स आशापुर, भवानी हीरो आशापुर, ठाकुर चूड़ा मिल आशापुर, इंडियन गैस एजेंसी, एनके इंटरप्राइजेस हाबीबवार, मिश्रा इंटरप्राइजेस हाबीबवार, रिया लाइट एंड साउंड अमेठी, नीरज एचडी वीडियो बेलोन, जागू मैथिली न्यूज, सभी स्पॉन्सर्स का कमेटी मेंबर की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इस बार फिर से आग उगलती हुई गेंदबाजी करने में माहिर अमरेंद्र बाहुबली का स्वागत है गेंदबाजी लाइनअप में। सामना करेंगे दिलीप, पहले से पांव कांप रहे हैं दिलीप के, देखने वाली बात। इस बार फिर से पढ़ने के बाद अतिरिक्त उछाल के साथ कानों के पास से सनसनाती हुई, गुनगुनाती हुई निकल गई, कोई मौका नहीं दिलीप के पास। फर्स्ट बाउंस का अपील कर रहे हैं लेकिन हमारे अंपायर ने नकारा। माफी चाहूंगा यहाँ पे अंपायर की तरफ से, फर्स्ट बाउंसर का इशारा आ चुका है, फिर से चलेंगे। और थोड़ी सी मिस फील्ड यहाँ पे, गेंद गई थर्ड मैन क्षेत्र में, मिलेंगे पूरे 4 रन। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेके निकली, वहां पे तैयार नहीं थे, अशोक से खराब फील्डिंग, चुनाव से खराब कीपिंग, इस तरह से यहाँ पे फील्डिंग करके मैच जीत नहीं सकते, रन एक रन से बचाने होंगे। दिलीप का खाता इसी चौके के साथ खुलता हुआ, 6 गेंदों में 4 रन, छठे गेंद पे आके खाता खुला जैसे तैसे, लेकिन इस तरह की फील्डिंग से नहीं जीत सकते आप मैच, चुस्त दुरुस्त रहना होगा यहाँ पे। इस बार फिर से चलेंगे, एक और इस बार अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। हमारे अंपायर ने दोनों हाथों को हवा में लड़ाते हुए वाइड का इशारा दिया। यहाँ पे काफी पीछे रहने की जरूरत है चुन्ना को, क्योंकि जिस तरह की गेंदबाजी अमरेंद्र कर रहे हैं, काफी पीछे रहने की जरूरत। इस बार विकेट कीपिंग में तबादला होता हुआ विकेट कीपर खुद अशोक आ गए हैं विकेट कीपिंग करने के लिए। फिर से चलेंगे अमरेंद्र, आग उबल रहे हैं इस बार दाहिने हाथ से, ओवर द विकेट सामना करेंगे इस बार दिलीप। इस बार अभी भी गेंद और बल्ले का संपर्क काफी, मतलब कि 26 का आंकड़ा चल रहा है गेंद और बल्ले के बीच में। जब भी अमरेंद्र गेंदबाजी करने आते हैं, जैसे तैसे बल्लेबाज अपना जान बचाकर नॉन स्ट्राइकर एंड पे भागने की फिराक में रहते हैं। जब अमरेंद्र आते हैं गेंदबाजी करने के लिए, आपका गोला फेंकते हैं गेंदबाज बल्लेबाज पर। इस बार फिर चलेंगे अमरेंद्र दाहिने हाथ से, इस बार गेंद को कट कर दिया, टिप पॉइंट के ऊपर से मिलेगा पूरे 6 रन। अब शब्द काफी ज्यादा बाहर थी गेंद, टैग मिल गया, रूट मिला और घर बना लिया यहाँ पे थोड़ी सी जगह थी ऑफ स्टंप के बाहर। अच्छा शॉट खेला दिलीप ने, मिलेगा पूरे 6 रन। इसी के साथ स्कोर हो चुका है 36 रन। 8वां ओवर अभी प्रगति पे है, थोड़ी सी रन आए इस ओवर में, एक मिसफील्ड से चौका आया था, अगर उसको रोके रहते तो मात्र 6 रन रहते इस ओवर में, एक वाइड के साथ 7 रन। लेकिन थोड़ी सी फील्डिंग से भी अच्छी फील्डिंग की उम्मीद की जा सकती है यहाँ पे। अमरेंद्र बाहुबली इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से, ओवर द विकेट सामना करेंगे फिर से दिलीप। इस बार
का इस बार यहाँ पे थोड़ी देर के लिए फील्ड में गहमा गहमी 5 खिलाड़ी दायरे से बाहर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखना यार, नो बॉल का इशारा आ गया यहाँ पे अंपायर के द्वारा। 6 खिलाड़ी दायरे से बाहर थे। इस तरह की खराब कप्तानी से आप मैच को नहीं जीत सकते हैं। अच्छी गेंद थी यहाँ पे, अमरेंद्र ने काफी शानदार वापसी करी थी एक छक्का खाने के बाद। अमरेंद्र का भी यहाँ पे मनोबल टूटता हुआ अच्छा खासा मैच बना हुआ था, बना बनाया मैच। यहाँ पे फील्डिंग, खराब फील्डिंग और खराब फील्ड प्लेसमेंट की वजह से यहाँ पे अपने हाथों से फिसलने दी जा रही है रमौली की एक टीम, क्योंकि ज्यादा बड़ा लक्ष्य है नहीं। आने वाले बल्लेबाज बम सैंडी काफी शानदार फिनिशर है, अगर उन्हें 3-4 के शॉट्स अच्छे वो खेल लेते हैं तो मैच को आपके से काफी दूर लेके चले जाएंगे। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अमरेंद्र, सामना करेंगे दिलीप। फ्री हिट गेंद थी, गेंद का फायदा उठा नहीं पाए, मात्र एक सिंगल से संतोष करना होगा। सोनू लॉन्गन से भागकर आए, गेंद को फील्ड किया, अच्छी वापसी, लेकिन फिर भी अमरेंद्र की जितनी तारीफ करो उतनी कम। फील्डर से उन्हें उतना कुछ साथ मिल नहीं रहा है। फालतू का को बोल दिया ना, बोलना था तू, चुना यही है, तुमको दिखाई 8वां ओवर भी प्रगति पे है। अमरेंद्र शानदार गेंदबाजी फिर भी कर रहे हैं, अपने तरफ से भरपूर लगा रहे हैं, भरपूर जी जान झोंक रहे हैं अमरेंद्र। दाहिने हाथ से फिर से चलेंगे। इस बार अच्छी गेंद थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई है, गेंद वहां पे गैप में, जब तक खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करते, थोड़ी सी एक और मिसफील्ड, दूसरा रन लेने के प्रयास में, लेकिन मना किया यहाँ पे। सोनू लेफ्टी से थे वहां पे तानाजी के साथ, ओवर की समाप्ति मिसफील्ड हुई थी सोनू लेफ्टी के साथ। 1 रन का इजाफा, स्कोर हो चुका 39 रन। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन आए इस ओवर में। काफी महंगा ओवर साबित हुआ ये, जिसमें कि फील्डर 8 ओवर में 62 रनों की जरूरत, 48 गेंदों में 62 रनों की जरूरत जीतने के लिए। इस ओवर में 14 रन आए। अगर यदि जैसा कि फील्डर की वजह से एक नो बॉल था, जिसमें कि खिलाड़ी दायरे से, अतिरिक्त खिलाड़ी दायरे से बाहर था, जिस वजह से नो बॉल दिया गया, और विकेट कीपर से भी एक मिसफील्ड हुई थी जिसका चौका मिला, वहां पे थर्ड मैन में मिसफील्ड हुआ था अशोक झा के द्वारा। इस तरह के चौके और एक्स्ट्रास देके आप मैच में कतई बने नहीं रह सकते। दिखाई रहे हैं। स्कोर है 39 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर की समाप्ति के बाद, और 8 ओवर का खेल शेष, 62 रनों की जरूरत। 48 गेंदों में 62 रनों की जरूरत है अंकित सुशारी को इस मैच को जीतकर ट्रॉफी के एक और कदम नजदीक बढ़ाने के लिए। जो टीम आज मुकाबला जीतेगी फाइनल में पहुंचेगी, और कल के होने वाले फाइनल राजा 11 डकराम स्टार से सजी हुई टीम का हाबीब वार के कैलाश 11 से सामना होगा। उन दोनों में से जो विजेता रहेंगे उनका मुकाबला आज की विजेता से होगा। देखने वाली बात, आज एक फाइनलिस्ट हमें मिल जाएगा। कुछ ही क्षणों का इंतजार, आधे 1 घंटे के बाद हमें एक फाइनलिस्ट मिलता हुआ दिखेगा। अभी शदनाम खान आए हैं, पहले ओवर में 12 रन खर्च किए थे, लेकिन इस बार अच्छी वापसी करानी होगी शदनाम खान को। सामना करेंगे मणिकांत, एक प्लेयर डीप एक्स्ट्रा कवर में एक फील्डर को यहाँ पे रखा है। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी तैनात। इस बार चलेंगे फिर से। अच्छी गेंद पकड़ने के बाद विकेट से पहले से हट गए थे मणिकांत, लेकिन यहाँ पे नहीं दे रहा है, कौन सी दे रहा है? यहाँ पे अंपायर से पूछ रहे हैं, दोनों अंपायर आपस में डिस्कस कर रहे हैं। खिलाड़ियों से अनुरोध, उत्साह ज्यादा उत्साहित ना हो, दोनों अंपायर आपस में बात कर रहे हैं। फर्स्ट बाउंसर का इशारा आया है यहाँ पे अंपायर के द्वारा, दोनों अंपायर अपने में बातचीत कर रहे हैं, उस चीज को ध्यान में रखेंगे। इस बार फिर से चलेंगे। शदनाम खान दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, सामना करेंगे इस बार मणिकांत शदनाम खान का। इस बार गेंद खड़ी हो गई है, यहाँ पे लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खिलाड़ी आ रहे हैं और मिलेंगे पूरे 6 रन।
डॉट गेंद, धीरे धीरे एक एक डॉट गेंद प्रेशर बढ़ाता हुआ, अगर 5-6 रन एक ओवर में जा रहे हैं तो कोई जल्दी खतरे की बात है नहीं, लेकिन अगर 10 रन का ओवर जाता है तब मुश्किल का सबब होगा रमोली के आने वाले गेंदबाजों के लिए। इस बार फिर चलेंगे शब्दाम दाहिने हाथ से, इस बार स्लोअर गेंद डाउन द ग्राउंड खेला, यहाँ पे छोटू कश्यप आकर गेंद को फील्ड कर रहे हैं, दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला, 1 रन का इजाफा बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 25 रन पे जो चौथा विकेट गिरा था उसके बाद से थोड़ा सा विकेट के गिरने के रफ्तार को रोका है दोनों बल्लेबाजों ने, और थोड़ा बहुत रमोली के फील्डरों ने उनका साथ दिया एक्स्ट्रास देकर। इस बार बॉल्ड कर दिया सद्दाम खान ने, जैसा कि मैं बता रहा था, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। अच्छा बॉलिंग किया, सही समय पे सद्दाम खान को लाया गया। 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 46 रन 5 विकेट के नुकसान पर।